हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया की। ठीक है कि हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी ले रखा है, पीआर सिस्टम भी अडॉप्ट कर रखा है। अगर डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें, जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर हम पब्लिक सीधे वोट करती है, तो वहाँ पर को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है। और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है या लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, वहाँ पर को हम इनडायरेक्ट इलेक्शन का यूज़ करते हैं और वहाँ पर को हम पीआर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो how does PR work in Rajya Sabha? A third variant of PR, the single transferable vote system, is followed for Rajya Sabha elections. Every state has a specific quota. ये कोटा रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, specific quota of seats in the Rajya Sabha. The members are elected by the respective state legislative assemblies. The voters are the MLAs in that state. Every voter is required to rank candidates according to her or his preference. To be declared the winner, a candidate must secure a minimum quota of votes which is determined by a formula. तो बेसिकली यहाँ पर को एक फिक्स कोटा डिसाइड कर दिया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल वोट्स मान लो, ठीक है, और जो कैंडिडेट्स हैं, तो जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कह सकते हो +1 कुछ इस तरह का। जैसे 100 अपॉन, अगर मान लो 4 हैं तो 4 + 1 5, तो 5 2 जा 10, 20 + 1 21। तो यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दिया है। फॉर एग्जांपल, इफ 4 Rajasthan members have to be elected by the 200 MLAs in Rajasthan, the winner would require 41 votes. 200 upon 4 + 1 means 5, 5 4 जा 40, 40 + 1. When the voters are counted, it is done on the basis of first preference voters secured by each candidate, of which of the candidate has secured the first preference votes. If after the counting of all first preference votes required number of candidates fail to fulfill the quota, the candidate who secured the lowest votes of first preference is eliminated and his or her votes are transferred to those who are mentioned as second preference on those ballot papers. This process continues till the required number of candidates are declared elected. तो यही प्रोसीजर हम प्रेसिडेंट सिस्टम में भी, प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी फॉलो करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है कि वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर जैसे काउंटिंग होगी, आप प्रेफरेंस देंगे ABCD, आपने पहले नंबर पे इसको प्रेफरेंस दी, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको, लेकिन अगर वो कोटा लेके नहीं आ पाया, तो अब सबसे कम वाले को, जिसको सब पहली प्रेफरेंस में सबसे कम वोट मिले थे, वो हो जाएगा बाहर। और उसकी सेकंड, उस ऑब्वियस है उसका भी कोई ABC को कुछ प्रेफरेंस दिए होंगे, तो उसमें इनके वोट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि अभी कौन जीत रहा है। अगर उसमें भी काउंटिंग नहीं हो, अगर उसमें भी प्रॉपर कोटा नहीं आ पाया, फिर जिसको कम होंगे उसको साइड करेंगे और उसके बचे हुए प्रेफरेंसेस को A और B या फिर जो भी बचे हैं उसमें ऐड कर देंगे। तो ये काम तब तक होता है जब तक का हमको पूरा कोटा मिल ना जाए। ठीक है, तो ऐसा ही प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई डिड इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम। हालांकि इस बारे में हमने लास्ट वीडियो बात करी थी। ठीक है, the answer is not very difficult to guess. If you have carefully read the box explaining the Rajya Sabha election, you would have noticed that it is a complicated system which may work in a small country but would be difficult to work in a subcontinental country like India. The reason for the popularity and success of the FPTP system is simplicity. The entire election system is extremely simple to understand even for common voters who may have no specialized knowledge about politics and elections. There is also a clear choice represented to the voters at the time of election. Voters have to simply endorse a candidate or a party while voting, depending on the nature of actual politics. Voters may either give greater importance to the party or to the candidate or balance the two. FPTP system offers voters a choice not simply between the parties but specific candidates. In other electoral system, especially PR system, voters are often asked to choose a party and the representatives are elected on the basis of party list. As a result, there is no one representative who represents and is responsible for one locality. Is in constituency based system like the FPTP, the voters know who their own representative is and can hold him
और हर अकाउंटेबल। हालांकि इसमें बात बहुत अच्छी अच्छी कही गई है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि लास्ट टर्म क्या कहता है, द वोटर्स नोन हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इज एंड कैन होल्ड हिम और हर अकाउंटेबल। तो हमने हालांकि बात करी थी एफटीपी सिस्टम क्यों यहाँ इंडिया में अडोप्ट किया गया। सबसे बड़ी बात है कि सिंपल है, ईजी है और टाइमली इसको रेगुलेट किया जा सकता है। बट पीआर सिस्टम इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। अगर वो छोटी कंट्री है जहाँ पॉपुलेशन कम है, लेस पॉपुलस कंट्री है, तो इट इज़ पॉसिबल टू अरेंज देयर। बट इन लाइक इंडिया वेयर 130 crore इंडियंस आर देयर, तो इट्स रियरली पॉसिबल टू यूज़ पीआर सिस्टम। अब आप खुद ही सोचिए, और यहाँ पर को एपीटीपी इसलिए भी यहाँ पर को सुटेबल लगता है क्योंकि हमने डायरेक्ट इलेक्शन करना है। अब डायरेक्ट वोटिंग होनी है, यानी कि पब्लिक ने वोटिंग करनी है, तो पार्टी की बजाय कैंडिडेट को देना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि पार्टी को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर मेंबर को वहाँ पर को हम अकाउंटेबल समझते हैं। तो ऐसे केस में हमको एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिलता है जो हमारे लिए अकाउंटेबल हो, हमारे लिए काम करे। तो इसलिए भी एपीटीपी सिस्टम ज़्यादा बेस्ट माना जाता है इंडिया के लिए। और इजी है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसको वोट मिल गए हैं वो जीत जाएगा, पूरी सीट उसकी। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर को आपको एक कार्टून देखो, इसमें कहता है दीज मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर ट्राइंग टू लिसन टू टीनी अपोजिशन वॉज दिस इफेक्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रल सिस्टम। तो यहाँ पर को कह रहा है कि अगर अब भाई अगर जो एफ में जीत गया वो, तो फिर तो अपोजिशन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, ये कहता है कि वॉज दिस इफेक्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रल सिस्टम। तो यहाँ पर को आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ें होती हैं, ये आपके लिए और हमारे लिए सवाल है कि क्या ये रियल में है, ऐसा होता है। ठीक है, ये आप एक्सपीरियंस से या फिर न्यूज़ से या फिर पुरानी इलेक्शन जो रिजल्ट थे उनसे आप ये चीज़ें पता लगा सकते हो। ठीक है। More importantly, the makers of our constitution also felt that PR-based electoral election may not be suitable for giving a stable government in a parliamentary system. We shall study the nature of parliamentary system of executive in the next chapter. This system requires that the executive has majority in the legislature. You will notice that PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of votes. The PTP system generally gives the largest party or coalition some extra bonus seats, more than their share of votes would allow. Thus, this system makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of stable government. Finally, the FTP says FTP system encourages voters from different social groups to come together to win an election in a locality. In a diverse country like India, a PR system would encourage each community to form its own nationwide party. This may also have been at the back of the mind of our constitution makers. The thing is, why constitution makers decided the FTP system? The main thing is in legislature we want majority. Okay, but PR system does not gives us majority. Okay, what it gives a proportional representation. मीन्स जिसको जितना प्रोपोर्शन मिला है उसको उतनी सीट्स मिल जाएंगी। अब इससे मेजोरिटी कैसे आएगी, और मेजोरिटी नहीं आएगी तो फिर एग्जीक्यूटिव अपना काम कैसे करेगा, लेजिस्लेचर अपना काम कैसे करेगा। तो ऑब्वियस है जब भी हम कोई रूल बनाएंगे तो उसमें वोटिंग होगी, तो इस हिसाब से तो कभी किसी रूल को पास करना ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये भी ज़रूरी था कि हमको मेजोरिटी मिले, और मेजोरिटी मिलेगी एफईटीपी सिस्टम में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी था। The experience of the working of the constitution has confirmed the expectation of the constitution makers. The APDP system has proved to be simple and familiar to ordinary voters. It has helped larger parties to win clear majorities at the center and the state level. The system has also discouraged political parties that get all their votes only from one caste or community. Normally, the working of the FPDP system results in a two-party system. This means that there are two major competitors for power, and power is often shared by these two parties alternately. It is difficult for new parties or the third party to enter the competition and share power. In this respect, the experience of FTP in India is slightly different. After independence, though we adopted the FTP system, there emerged a one party dominance, and along with it,
there existed many smaller parties after 1989. India is witnessing the functioning of the multi-party coalitions. At the same time, gradually, in many states, a two-party competition is emerging, but the distinguishing feature of India's party system is that the rise of coalition has made it possible for new and smaller parties to enter into electoral competition in spite of the FPDP system. So, when the India has adopted this FPDP system, so our constitution makers have felt a different concept of it. बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर को जो एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से आते हैं या कास्ट से आते हैं उनका जो कैंडिडेट होता है उनको सारे वोट मिल जाते हैं, ठीक है, तो उससे उसको उसकी सीट मिल जाती है। तो यहाँ पर को लगता तो ये है कि ये बेसिकली टू पार्टी सिस्टम यहाँ पर को लग रहा है कि पर्टिकुलर मेंबर पे लोग जीत गए, ठीक है, दूसरे वाले हार गए। लेकिन इंडिया का यहाँ पर को थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है। हम यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑल्दो इट इज़ अ FPDP सिस्टम, बट यहाँ पर को सिर्फ टू पार्टीज़ नहीं है, यहाँ पर को देयर आर मेनी पार्टीज़। अगर हम 1989 के बाद देखें तो 1989 के बाद तो मेनी पार्टी यहाँ पर को दिखनी थी, ठीक है, और पार्टी कोलिशन भी यहाँ पर को दिखने लगता है। तो बेसिकली फ़ायदा ये हुआ है कि जो छोटी पार्टीज़ हैं या जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको भी यहाँ पर को आगे आने का मौका मिलता है इस FPDP सिस्टम में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। अब रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की ज़रूरत क्या थी, पहले ये भी समझना ज़रूरी है। जब हमने FPDP सिस्टम पढ़ा तो हमने ये भी बात करी थी कि जो मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो जीत जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। जैसे हमने बात भी करी थी ना कि मेजॉरिटी वाला जीत जाएगा, उसको पता है कि इस लोगों ने इन लोगों ने मुझे वोट दिया, तो वो अकाउंटेबल उन्हीं के लिए है। लेकिन उनका क्या, माइनॉरिटी ग्रुप्स का क्या, तो उनके लिए भी तो कुछ चाहिए था। तो उसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी रिज़र्व करी, ठीक है। अब कैसे रिज़र्व करी, और जो माइनर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो लाइक शेड्यूल टाइप्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, तो उनके लिए फिक्स कर दिया कि इनमें से यही मेंबर आएगा। तो अब चाहे नंबर ऑफ पॉपुलेशन लेस है ज़्यादा है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, ताकि उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो सके। We have noticed that FPDP election system, the candidate who secured the highest votes in a particular constituency is declared elected, ठीक है, ये बात हमने करी थी। दिस ऑफन वर्क्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ द स्मॉलर सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप जो स्मॉलर सोशल ग्रुप्स हैं उनके लिए तो ये डिसएडवांटेज ही था। दिस इज़ इवन मोर सिग्निफिकेंट इन इंडियन सोशल कंटेक्स्ट, और ये तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ इंडियन कंटेक्स्ट में देखो तो आप कास्ट सिस्टम ज़्यादा है, ठीक है, कास्ट भी डिस्क्रिमिनेशन तो ऑब्वियस है, तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बाहर निकल के सामने आने वाली थी। We have had a history of caste-based discrimination in such a social system. The FPDP electoral system can mean that the dominant social groups and caste can win everywhere, and the oppressed social groups may continue to remain unrepresented. तो इसको कम करने के लिए या फिर पूरा ही डिक्रीज करने के लिए हमने रिजर्वेशन सिस्टम लेके आए। Our constitution makers were aware of this difficulty and the need to provide a way to ensure fair and just representation to the oppressed social groups. तो उनको पता था कि ये दिक्कत होगी FPDP सिस्टम में, तो जो oppressed ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी ये काम ज़रूरी था। This issue was debated even before independence and the British government had introduced separate electorates, ठीक है, तो उस समय भी ये जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उस जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए हुए थे। आप पढ़ सकते हैं 1919, ठीक है, 1999 का एक्ट देख सकते हैं, 1919 का एक्ट देख सकते हैं, तो वहाँ पर ये सब बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। दिस सिस्टम मीन्स दैट फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू द कम्युनिटी। In the Constituent Assembly, many members expressed a fear that this will not suit our purposes. Therefore, it was decided to adopt the system of reserved constituency.
In this system, all voters in a constituency are eligible to vote, but the candidate must belong to only particular community or social section for which the seat is reserved. मीन्स वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी का सीट फिक्स कर दी जाएगी ताकि जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा ऑप्रेस्ड ना हो सके, उनको ज़्यादा दबाया ना जा सके. Separate electorates have been a curse to India, have done incalculable harm to this country. Separate electorates have blurred our progress. We Muslims want to merge in the nation. For God's sake, keep your hands off reservation for the Muslim community. ताज तजमुल हुसैन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, ठीक है, 26 मई 1949. तो दरअसल 1909 की बात करूँ या 1919 की बात करूँ तो वहाँ पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करी थी. उसमें क्या होता है कि उसी पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर वोट करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम थी. फिर हमने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, हमने कहा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का पर्टिकुलर कास्ट का कैंडिडेट होगा लेकिन वोट सब करेंगे ताकि उससे ये एक बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग ना आए. तो उससे दिक्कत हुई थी जब ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए थे, ठीक है, जब मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए उस टाइम पे 1909 में 1919 में इंट्रोड्यूस किया था. तो उस समय भी इसको रोकने की काफ़ी कोशिश की थी. There are certain social groups which may be spread across the country in a particular constituency. Their numbers may not be sufficient to be able to influence the victory of a candidate. However, taken across the country, they are a significantly sizable group. हो सकता है कि कुछ ग्रुप जो हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में उनकी संख्या ज़्यादा ना हो, लेकिन पूरे देश के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हो सकता है वो अच्छा साइज हो उनका, ठीक है. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी कि वहाँ पर एक साइड में जो कार्टून क्वेश्चन पूछता है वहाँ पर उसने क्वेश्चन भी किया था कि मैं अपनी जगह में एक माइनॉरिटी हूँ, ठीक है, लेकिन पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो एक अच्छी खासी मेजॉरिटी है. तो फिर किस हिसाब से ये माइनॉरिटी हम डिसाइड करेंगे कि ये माइनॉरिटी है. मतलब हो सकता है ना कि अगर आप किसी ऐसे रीजन में रह रहे हो जहाँ पर को पर्टिकुलर कास्ट के लोग कम हैं और दूसरी कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हो सकता है पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो दूसरी वाली जिनकी हम संख्या कम कह रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो. तो ये यहाँ पर को इस वजह से कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी थी. To ensure their proper representation, a system of a reservation becomes necessary. The Constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha and the state legislature as assemblies for the scheduled caste and the scheduled tribes. This provision was made initially for a period of 10 years and result of successive constitutional amendments has been extended up to 2010. The parliament can take a decision to further extend it when the period of reservation expires. The number of seats reserved for both of these groups is in proportion to their share in the population of India. Today, of 543 elected seats in the Lok Sabha, 79 are reserved for scheduled caste and 41 are reserved for scheduled tribes. तो जितनी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर कास्ट की पूरे देश में है उसी रेशियो में हम लोकसभा में भी उसको रिजर्व किया गया है. 543 सीट्स में से लोकसभा की टोटल 543 सीट्स हैं, जिसमें जो हम 2 एंग्लो इंडियन कहते थे वो 2 एंग्लो इंडियन अभी बीच में अमेंडमेंट से उनको रिमूव कर दिया गया. 79 तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और 41 शेड्यूल टाइप्स के लिए रिजर्व है, ताकि ऐसा ना हो. समझो ना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादा जहाँ पर को मेजोरिटी होंगी तो वो तो मेंबर बन जाएगा. इस हिसाब से तो ऐसा हो सकता है कि जो शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल टाइप्स के लोग थे वो लोकसभा में आ ही नहीं पाते. तो इससे तो वो तो पूरे ही ऑप्रेस कर दिए जाते, पूरे ही दबा दिए जाते, डिप्राइव्ड ग्रुप बन जाते वो. तो इसीलिए ज़रूरी था कि कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड कर दी जाएगी यहाँ से इतने तो आने ही आने हैं, ठीक है. हु डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूंसी टू रिजर्व. अब ये भी सवाल है कि कौन डिसाइड करता है, ऑन व्हाट बेसिस इज द डिसीजन टेक और व्हाट आर द बेसिस, what are the grounds. This decision is taken by an independent body called delimitation commission, ठीक है. ये डिसाइड करता है delimitation commission. The delimitation commission is appointed by the president of India. So this is one liner. The delimitation commission is appointed by the president of India.
एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और किसके साथ मिलकर काम करता है? इलेक्शन कमीशन के साथ। इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पसेज ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज of constituency all over the country. A quota of constituency to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of SC or ST in the state. After drawing the boundaries, the Delimitation Commission looks at the composition of population in each constituency. Those constituencies that have the highest proportion of scheduled tribes population are reserved for ST. In the case of scheduled castes, the Delimitation Commission looks at two things. It picks constituencies that have higher proportion of scheduled caste population, but it also spread these constituencies in different regions of state. ओके, तो बात करते हैं अभी डेलिमिटेशन कमीशन करता क्या, कैसे का काम है। अब सबसे पहले तो डेलिमिटेशन कमीशन का ये काम है कि वो चेक करता है कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसे उनके लिए रिज़र्व कर दिया जाता है। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के मैटर में यहाँ पर को डेलिमिटेशन कमीशन दो बातों पे ज़्यादा ध्यान देता है। पहला तो वो उन कॉन्स्टिट्यूंसी को चूज़ करता है जिनमें शेड्यूल्ड कास्ट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, लेकिन वो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को पूरे स्टेट में अलग अलग पोर्शन में स्प्रेड कर देता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे उसको फैला दिया जाता है कि यहाँ से चुने जाएंगे। अब परिसीमन कभी कभी ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू डेलिमिटेशन आयोग कमीशन वो उसको चेंज करते भी रहता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर को तो इससे क्या होता है कि हर एक पोर्शन को एक, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट का हमारे देश में पूरे देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह आपको इक्वली मिल जाएंगे, तो हम एक ही जगह से उसको नहीं देख सकते। हम उसको क्या करते हैं कि हर पूरे स्टेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, this is done because the scheduled caste population is generally spread evenly throughout the country. These reserved constituency can be rotated each time delimitation exercise is undertaken. तो ये हर टाइम उसमें चेंजेस आते रहते हैं according to delimitation commission. The constitution does not make similar reservation for other disadvantaged groups. Of late, there has been a strong demand seeking reservation of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women, given the fact that every few women are elected to representative bodies. The demand for reserving one-third seat for women is increasingly being articulated. Reservation of seats for women has been provided for in rural and urban local bodies. We shall discuss this in the chapter on local governments. A similar provision for Lok Sabha and Vidhan Sabha would require an amendment to the constitution. Such an amendment has been proposed several times in the parliament but has not yet been passed. तो बहुत टाइम से वुमेंस के लिए भी यहाँ पर को रिजर्वेशन की मांग हो रही है, क्योंकि बहुत कम वुमेन आपके लोकसभा राज्यसभा में पहुँच पाती हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ कम हो पाता है। तो इसलिए बहुत समय से 1/3 इसको रिज़र्व करने की बात हो रही है। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर को ये सीट जो है रिज़र्व की गई हैं वुमेंस के लिए। ठीक है, जब आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर आएगा वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितनी सीट्स किस तरीके से रिज़र्व की गई हैं। ठीक है, तो बाकी इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।